Hello my dear students. In this session we will discuss about data interpretation section and the questions related in the CUET PG examination. Previous years में क्या पैटर्न रहा है, कितने क्वेश्चंस आए हैं, किस किस टॉपिक पे आए हैं और we'll be discussing the questions as well. चलिए शुरुआत करते हैं. So as we know that till previous year, till the last year, number of questions in CUET PG were 100 and the time was 120 minutes. 100 questions in 120 minutes. और एज सच क्योंकि सेक्शंस नहीं थे तो कोई डायरेक्ट ब्रीफ नहीं था कि क्या डिस्ट्रीब्यूशन होगा क्वेश्चंस का. दिस ईयर द चेंज इज दैट फ्रॉम 100 क्वेश्चंस द नंबर ऑफ क्वेश्चंस इज रिड्यूस्ड टू 75 and the time has reduced from 120 minutes to 105 minutes. So you can also observe that number of questions has reduced by 25 but time has only been reduced by 15 minutes. So this is the pattern this year, 75 questions in 105 minutes. Since the time per question has increased, so there is a good possibility that the difficulty level, since the questions have been really easy for past 2 years, but the difficulty level could also increase this year slightly. As far as DI section is concerned, this is the syllabus of the data interpretation. Pie charts, line graphs, bar graphs, tabular charts, वही normal चीज़ है. Mixed graphs, data sufficiency. Data sufficiency को हम लोग क्वांट में ही कवर करेंगे साथ में, क्वांट के क्वेश्चंस के साथ में. ग्राफ नंबर सिस्टम्स, tabulation and sets and Venn diagram. Again, this is the number system and graphs. This will also be covered in the quant only. ठीक है. और लास्ट 2 years का अगर पैटर्न देखें तो CUET PG 2023 शिफ्ट 1 में देयर वर टोटल 10 क्वेश्चंस फ्रॉम डेटा इंटरप्रिटेशन. 5 क्वेश्चंस का सेट था टेबुलेशन का और 5 क्वेश्चंस का सेट था एक पाई चार्ट का. और इन द शिफ्ट 2 देयर वर टोटल 15 क्वेश्चंस, 5 फ्रॉम द पाई चार्ट, 5 फ्रॉम द ग्रुप बार ग्राफ, 5 फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल बार ग्राफ. अच्छा, मैंने नंबर सिस्टम को इंक्लूड नहीं किया है, नंबर सिस्टम और ग्राफ के क्वेश्चंस को एज सच DI में. ठीक है, वो क्वांट में ही इंक्लूड होंगे बट डेटा के इंटरप्रिटेशन के सिलेबस में दिया हुआ है. देन इन द 2022 शिफ्ट 1 देयर वर टोटल 8 क्वेश्चंस फ्रॉम DI, 3 फ्रॉम द बार ग्राफ, 3 फ्रॉम द लाइन ग्राफ और 2 फ्रॉम सेट एंड वेन डायग्राम. जबकि शिफ्ट 2 में देयर वर एक्चुअली 4 सेट्स ऑफ 2 क्वेश्चंस ईच फ्रॉम सेट एंड वेन डायग्राम. आई डोंट नो कि इतने ज़्यादा क्वेश्चंस क्यों एक साथ पूछ लिए एक ही शिफ्ट में, बिकॉज ऑल द क्वेश्चंस वर ऑफ सिमिलर टाइप, सेम टाइप के थे. 3 सेट और इजी क्वेश्चंस थे, स्पेशली 3 तो बिल्कुल एग्जैक्टली सेम थे. 4th सेट को जरूर कह सकते हैं कि थोड़ा सा डिफरेंट था. विल बी डिस्कसिंग दैट. और 2 क्वेश्चंस फ्रॉम पाई चार्ट एंड 3 फ्रॉम टेबुलेशन. इन द सेशन टुडे we'll be discussing all these questions, these 25 questions. The difficulty level you will analyze that questions have been quite easy or very doable. So you must not miss any question from the DI section. चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस को. तो फर्स्ट सेट फ्रॉम 2023 एग्जामिनेशन, tabulation based set. The table gives the number of vehicles in thousands of different models and colors sold in 2 cities in a particular year. So all these values are in thousands, जो भी given है for Hyderabad and Bangalore, and then colors are given for all the vehicles and type are given, type A, B, C, D, E, F. Question number 1 is in Hyderabad, the number of vehicles sold was the maximum for which of the following color model combination? Number of vehicles sold was maximum for which of the following color model combination? For A, the maximum is 75. For B, the maximum is 80. So 80 is definitely greater than 75. Then 90 is there, the highest. And then 90 is the highest actually. So that is white C, color white and model C. Option A will be the answer. You can identify कितना easy सवाल है, कुछ भी नहीं करना है इसमें, just table में values को देखना है, that's all. Next question, question number 2. The total number of silver colored vehicles sold in Bangalore is approximately what % of that in Hyderabad? Silver vehicles sold in Bangalore is approximately what % of that in Hyderabad? तो सिल्वर व्हीकल्स हैदराबाद में कितने सोल्ड हुए? 35 + 35 70 + 40 110 + 30 140 + 52 192. अच्छा, जब भी हम ऐड कर रहे हैं, जब भी एडिशन करोगे तो एडिशन में एक चीज़ याद रखना. फॉर एग्जांपल वी आर एडिंग 37 + 42. ठीक है, सब कुछ लिखने बैठोगे तो हो चुका. मेंटली ही ऐड करना है हमेशा, और ऐड करते समय क्या ध्यान रखना है? 37 तो 37 है अपना. जब 42 को ऐड करोगे तो ऐसे समझो 37 + 40 को ऐड कर रहे हो और +2 को ऐड कर रहे हो. तो 37 + 40 is 77
एंड +2 विल बी 79। ठीक है, जब भी 2 डिजिट नंबर्स को ऐड करना है तो ऐसे ही लगातार सीक्वेंस में ऐड करते जाना है, कभी गलती नहीं होगी। इज दैट क्लियर? ठीक है, बाकी एडिशन पे एक सेपरेट से सेशन लेंगे तो वहाँ पे बहुत सारी और चीज़ें डिस्कस करेंगे और काफ़ी प्रैक्टिस करेंगे इस पर। चलो बैंगलोर का देख लेते हैं, सिल्वर कलर का। तो फॉर बैंगलोर दिस इज 20 + 35 दैट इज 55, 55 + 7 62 + 30 92, 94 134 136 156 163 173। तो नंबर इज 173 विच इज 19 लेस देन 192। और क्वेश्चन में बेस वैल्यू क्या है? टोटल नंबर ऑफ सिल्वर कलर्ड व्हीकल्स सोल्ड इन बैंगलोर इज अप्रॉक्सिमेटली व्हाट परसेंट ऑफ दैट इन हैदराबाद, यानी कि हैदराबाद वाला वैल्यू इज द बेस वैल्यू। तो 192 से 19 कम है, यानी कि ऑलमोस्ट 10% कम है, तो 90% विल बी द वैल्यू, ऑप्शन डी। Question number 3. What is the difference between number of blue colored Model C vehicles sold in Hyderabad? Blue colored Model C vehicles sold in Hyderabad. Blue colored Model C is 50. And number of red colored Model F vehicles in Bangalore. Red Model F is 34. तो डिफरेंस पूछा है इन दोनों का, डिफरेंस है 50 और 34 के बीच में 16 का, और ऑब्वियसली दिस इज इन 1000, तो 16,000 विल बी द आंसर, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, question number 4. The total number of blue colored vehicles of model E and D sold in Bangalore is exactly equal to the number of white colored vehicles of which model in Hyderabad? So blue colored vehicles of model E and D, D and E basically, so that is 37 and 43, sum is 80,000, 80,000, or white colored vehicles in Hyderabad में 80,000 value is for B, model B, so option C will be the answer. Oh, sorry, last question. For which model the difference between white colored vehicles sold in 2 cities is minimum? Difference between white colored vehicles sold in 2 cities is minimum for which model? So model A, this is 75 for Hyderabad, 60 for Bangalore, 15 का डिफरेंस है। मॉडल बी के लिए 80 एंड 81, तो क्लियरली मॉडल बी क्लोजेस्ट लग रहा है। अगर कोई इक्वल नहीं है तो फिर तो ये आंसर होगा 90 एंड 6, 85 एंड 90, 60 एंड 77, 65 एंड यस, तो मॉडल बी इज द आंसर, बिकॉज यहाँ पे डिफरेंस सिर्फ 1 का ही है, ऑप्शन बी क्लियरली। So this is the first set, table based set, and you can identify कि इस क्वेश्चन को, इन क्वेश्चन को सॉल्व करने में हार्डली 4 मिनट्स, 3-4 मिनट से ज़्यादा क्या लगना चाहिए, isn't it so? नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। बस ध्यान क्या रखना है कि गलती नहीं करनी है इसमें, कोई भी क्वेश्चन आपने गलत कर दिया तो फिर तो कहानी खत्म है। ऐसे इतनी इजी क्वेश्चंस को तो बिल्कुल भी हाथ से जाने नहीं देना है। नेक्स्ट सेट पे चलते हैं, द पाई चार्ट बेस सेट। द पाई चार्ट गिव्स द डिग्री वाइज ब्रेकअप ऑफ एक्सपेंडिचर ऑफ अ फैमिली इन अ पर्टिकुलर मंथ। अब डिग्री से वैल्यू दी है, वी नो कि पूरा पाई चार्ट जो है दैट इज ऑफ 360 डिग्री, सर्कल है, तो हमें डिग्री से वैल्यू दी है। किसी क्वेश्चन में परसेंटेज में दिया होगा, किसी में एग्जैक्ट वैल्यूज, एब्सोल्यूट वैल्यूज दी होंगी, कुछ भी दिया हो तो हमें ये समझना है। ठीक, टोटल अमाउंट स्पेंट इन द मंथ इज ₹45,800, और डिग्रीज को हमें फिर अल्टीमेटली 360 डिग्री से कंपेयर करके ही हमें पता चलेगा प्रपोर्शन कितना है। व्हाट इज द टोटल अमाउंट स्पेंट ऑन ग्रोसरीज एंड ट्रैवलिंग टुगेदर? ग्रोसरीज एंड ट्रैवलिंग टुगेदर, ट्रैवलिंग का डिग्री है 79.2, ग्रोसरीज का है 82.8, दोनों मिला के हो जाएगा 80 + 80, 79.2 + 0.8 दैट इज 80, तो 162 डिग्रीज इज ग्रोसरीज प्लस ट्रैवलिंग टुगेदर। प्रपोर्शन कितना होगा? 162 by 360 डिग्री एंड दिस मल्टीप्लाइड बाई 45800। ओके, तो 18 का मल्टीपल है दोनों, 18 से ये 20 टाइम्स आएगा, दिस विल गो 9 टाइम्स, तो 9/20, देन दिस 0 से ये 0 कैंसिल आउट हो गया। और देखो एक दो चीज़ें हैं जो यहाँ पे समझ में आनी चाहिए, कैलकुलेशन करनी है तो कर लेंगे, पर करने की क्या ज़रूरत है, थिंक अबाउट इट। यहाँ पे लास्ट में 1 0 आ रहा है, सिर्फ ओनली 1 0 इज देयर, इजंट इट सो? 2 से डिवाइड कर रहे हो, इवन नंबर है तो डिवाइड हो जाएगा, कोई उसमें दिक्कत नहीं है। यानी कि जो हमारा आंसर है वहाँ पे भी लास्ट में सिर्फ 1 0 आना चाहिए, क्योंकि कहीं और पे कोई और 0 तो नहीं है, डिवाइड करने वाले सारे 0 हमने कैंसिल आउट कर दिया, तो आंसर में भी एक ही 0 होगा, सो ऑप्शन सी आंसर होगा क्लियरली, कुछ भी और करने की जरूरत नहीं है यहाँ पे। इज दैट क्लियर? ठीक है, क्या बात समझ में आती है? डी हो नहीं सकता क्योंकि डी में कोई भी 0 नहीं है, ए बी भी नहीं हो सकता क्योंकि वहाँ पे 2 0 हैं, और जो मल्टीप्लाई कर रहे हैं दैट इज 9, 5 का मल्टीपल तो है नहीं, इजंट इट सो? ठीक है, क्लियर है, तो एक ही 0 आएगा। हाँ, ये चीज़ भी ध्यान देनी है कि 9 की बजाय अगर 10 कर रहे होते तो कहानी अलग होती, या कोई 5 का मल्टीपल होता तो भी चीज़ें बदल सकती थी, बिकॉज इवन हो सकता था यहाँ पे। ठीक है, बट हालांकि यहाँ पे है नहीं, 458 है एक्चुअल में, ये भी 2 से डिविजिबल है और 2 से डिवाइड कर रहे हैं, तो इफेक्टिवली क्या बनेगा ये 4580 डिवाइड बाई 2, दैट विल बी 2290 इंटू 9, यानी 22,900
minus 2290, so that will be 20,610. इज दैट क्लियर? ठीक है, ऑप्शन सी आंसर आ जाएगा, पर ये कैलकुलेट नहीं करना था। जैसे ही हमें दिख गया कि एक लास्ट डिजिट जीरो होगा और एक ही जीरो होगा, उसके बाद हमारा क्वेश्चन खत्म था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, टोटल अमाउंट स्पेंट ऑन ग्रॉसरीज, entertainment and investment together form approximately what percent of amount spent on traveling? Amount spent on traveling is 79.2, ग्रॉसरीज में है 82.8, प्लस इंटरटेनमेंट में कितना है, इंटरटेनमेंट है 36 डिग्रीज, और प्लस इन्वेस्टमेंट इज 54 डिग्रीज। तो 36 प्लस 54 इज 90, 90 प्लस 82.8, दैट विल बी 172.8 डिग्रीज, एंड ट्रैवलिंग इज 79.2 डिग्रीज। क्वेश्चन इज आस्किंग ट्रैवलिंग इज द बेस वैल्यू, कितना परसेंटेज होगा इसका 79.2 का। क्लियरली दिस इज ग्रेटर देन 200%, 200% से तो ज़्यादा वैल्यू आ रहा है, इजंट इट सो? 79.2 इंटू 2 कितना होगा, दैट विल बी 80% से 1.6 कम, या 160 से 80 इंटू 160 से 1.6 कम, यानी कि 158.4 डिग्रीज। ठीक है, सो ऑप्शन सी या डी तो आंसर नहीं है। और अब डिफरेंस कितना बचा, 158.4 डिग्रीज प्लस दिस इज 14.4 डिग्रीज, तो 20% से कम डिफरेंस बचा है, तो ऑप्शन बी विल बी आंसर क्लियरली। ठीक है, ऑप्शन ए होता तब होता जबकि 50% के आसपास की वैल्यू होती, तो ऑप्शन बी इज द आंसर। एग्जैक्ट वैल्यू कैलकुलेट करने की अगेन कोई जरूरत नहीं है, बिकॉज नॉट दीज ऑप्शन नहीं गिवन है। अगर नॉट दीज गिवन होता तो फिर हमको एग्जैक्ट वैल्यू कैलकुलेट करना पड़ता है इस क्वेश्चन में। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज द टोटल अमाउंट स्पेंड बाय द फैमिली ऑन शॉपिंग एंड एंटरटेनमेंट? शॉपिंग और एंटरटेनमेंट में टोटल अमाउंट कितना स्पेंड किया? एंटरटेनमेंट में है 36 डिग्रीज, शॉपिंग में है 68.4, शॉपिंग में है 68.4। ओके, अब क्योंकि 360 डिग्रीज टोटल है, 36 डिग्रीज कितना होगा, दैट विल बी 10%, यानी कि 4580, तो एंटरटेनमेंट में आ जाएगा ₹4580। बट शॉपिंग का उतना इजी नहीं, 68.4 है, तो यहाँ पे कैलकुलेट हमको करना पड़ेगा शॉपिंग का। 68.4 इज व्हाट, दिस इज 72 माइनस 3.6, इजंट इट सो? 72 माइनस 3.6 यानी कि डबल करना है। 72 डिग्रीज कितना होगा, दैट विल 36 का डबल, यानी कि ₹9160, बट माइनस करना पड़ेगा 3.6 डिग्रीज विच इज 1/100, यानी कि माइनस 458, isn't it so? This is 9 plus 4 कितना आएगा अप्रोक्सीमेटली, दिस इज 13,600, 13,740 माइनस 458, तो ऑप्शन डी आंसर है क्लियरली। ओके, ठीक है, कोई दिक्कत? क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज द रिस्पेक्टिव रेशियो ऑफ अमाउंट स्पेंट बाय द फैमिली ऑन मेडिसिन टू द अमाउंट स्पेंट ऑन ग्रॉसरीज? का रेशियो क्या होगा? तो एग्जैक्ट वैल्यू निकालने की जरूरत है, हमें चाहिए क्या है, रेशियो चाहिए, तो हम सीधे सीधे एंगल्स का रेशियो ले लेंगे। मेडिसिन में है 39.6, ग्रॉसरीज में है 82.8, तो क्लियरली जो रेशियो आ रहा है हमारा 39.6 या 396 इज लेस देन हाफ, जो 828 का हाफ वैल्यू है उससे भी छोटा है, यानी कि 1:2 तो आंसर नहीं हो सकता, क्लियरली है। 2:3 भी नहीं हो सकता है, बिकॉज नॉट इवन क्लोज, और क्योंकि लेस देन हाफ है तो डी भी आंसर नहीं हो सकता है। ठीक है, क्लियरली ऑप्शन सी आंसर है। क्वेश्चन तो यहाँ पे खत्म हो गया अपना, बट अगर रेशियो कैलकुलेट करना हो तो ऑप्शन कोई और भी क्लोज होता है, तो फिर हमें उस केस में सॉल्व करना पड़ता। तो अब यहाँ पे क्योंकि ऑप्शन में 11 गिवन है, तो अब तो निगाह जा रही है 11 पे, अदरवाइज हम क्या करते हैं फिर 4 से डिवाइड करते पहले, 4 से दोनों डिवाइड हो रहे हैं, तो 4 से दिस विल बी 99 एंड दिस विल बी 207, और अब इसके बाद में 11 से डिविजिबल पहला वाला तो है, पर दूसरा वाला 11 से डिविजिबल नहीं है, बट 9 से दोनों डिविजिबल है, तो 9 से काट देते हैं और फिर बचता है 11:23। इस क्वेश्चन में जरूरत नहीं था, बिकॉज हमने एक आइडिया ले लिया, आइडिया के बाद में क्वेश्चन खत्म हो गया। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज द अमाउंट स्पेंट बाय द फैमिली ऑन ट्रैवलिंग? ट्रैवलिंग में कितना अमाउंट स्पेंट हुआ है? ट्रैवलिंग इज 79.2, एंड 79.2 कितना है, 72 प्लस 7.2, 22% इफेक्टिवली हो गया, isn't it so? 72 प्लस 7.2, 72 होगा 4580 इंटू 2, यानी कि 4580 है, यानी कि 9160, और प्लस 916, तो 10,076, ऑप्शन ए आंसर आ गया। क्लियर है? क्या समझ पा रहे हो कि कैसे हम कैलकुलेशन कर रहे हैं?
ठीक है, अननेसेसरली अपनी कैलकुलेशन को अपने लिए कॉम्प्लिकेट नहीं करना है, सिंप्लीफाई रखना है, जितना हो सके उतना सिंप्लीफाइड रखना है। सिंप्लीफाइड फॉर्म में रहेगा तो कैलकुलेशन हमेशा आसानी से होगी, साथ में ऑप्शंस को भी हम लगातार ऑब्जर्व कर पाएंगे। अगर सेशन पसंद आ रहा है तो इसको लाइक ज़रूर करना है, और अगर तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यू कैन ऑल्सो कनेक्ट विद ऑन टेलीग्राम एट ADITYAKT एंड ज्वाइन द टेलीग्राम ग्रुप दैट इज CAT-ZMBA। वैसे अभी तो मैंने क्वेश्चंस का ये जो क्वेश्चन पेपर्स का PDF नहीं डाला हुआ है, आई विल पुट दैट PDF ऑन द ग्रुप एज वेल। तो फॉर दैट PDFs यू कैन ज्वाइन द टेलीग्राम ग्रुप एज वेल। ठीक है, वहाँ से यू कैन डाउनलोड द PDF, द कंप्लीट PDF ऑफ ऑल द क्वेश्चंस, न सिर्फ DI के बल्कि सारे जो भी क्वेश्चंस आए हैं एग्जाम में, और आंसर की एज वेल। नेक्स्ट सेट is from the shift 2. So that is also a pie chart based set. The pie chart gives the percentage of people working in the right shift from various industries. अभी नाइट शिफ्ट को इन्होंने राइट शिफ्ट किया है या जो भी है बहरहाल, एंड द परसेंटेज इन द रिस्पेक्टिव ब्रैकेट्स इंडिकेट द परसेंटेज ऑफ फीमेल्स आउट ऑफ नंबर ऑफ पीपल वर्किंग इन द राइट शिफ्ट। तो जो पहला परसेंटेज दिया है दैट परसेंटेज इज ऑफ पीपल, टोटल पीपल, मेन वीमेन टुगेदर, मेल फीमेल टुगेदर ऑफ दैट पर्टिकुलर इंडस्ट्री। और जो सेकंड परसेंटेज ब्रैकेट में मेंशन है दैट इज द परसेंटेज ऑफ फीमेल्स आउट ऑफ द नंबर ऑफ पीपल वर्किंग इन दैट पर्टिकुलर इंडस्ट्री। टोटल नंबर ऑफ पीपल इज गिवन एज 40,250, 40250. Question number 1 is, what is the percentage of women working in sports industry of the total number of people working in the right shift from all the industries together? Okay, so what is the percentage of women working in sports industry of the total number of people working in the right shift from all the people together? यानी कि 100% में सारी वैल्यूज में से नंबर ऑफ परसेंटेज ऑफ women working in sports industry कितना परसेंट होगा? तो स्पोर्ट्स में टोटल इज 18%, total is 18% and 20% is the number of women in that 18%, और 20% कितना होता है? 1/5 होता है। तो 18% divided by 5, so women will be 3.6%. that is all, question is done. क्योंकि टोटल ने पूछा है, 100% ने पूछा है, ऑप्शन बी आंसर आ जाएगा। अगर विमेन ने पूछता तो फिर हमें सबका विमेन कैलकुलेट करना पड़ता, फिर प्रोपोर्शन निकालते, बट यहाँ पे क्योंकि ओवरऑल में पूछा है तो 3.6% विल बी अवर आंसर इन दिस केस। नेक्स्ट क्वेश्चन, next is, what is the respective ratio of men to women working in right shift from the call center industry? Respective ratio of men to women in a right shift from the call center industries, ये यहाँ पे है। यहाँ पे we know कि 45% are women है, तो men कितने होंगे? 55% होंगे। ठीक है, एग्जैक्ट परसेंटेज निकालने की कोई जरूरत ही नहीं है, जब क्लियरली हमें पता है कि 45% are women, 55% आप मैन, रेशियो आ गया 9:11 का, विमेन इज टू मैन का, बट क्वेश्चन ने पूछा है मैन इज टू विमेन, यानी कि 11:9 विल बी आंसर, ऑप्शन ए। ऑर्डर इज इंपॉर्टेंट, ऑर्डर को ध्यान रखना है कभी भी क्वेश्चन में लास्ट में जब तुमने अपना कैलकुलेट कर लिया है, बिकॉज इन ए गुड क्वेश्चन दोनों ऑप्शन रहेंगे, 11:9 भी रहेगा, 9:11 भी रहेगा। कभी ऐसा भी हो सकता है कि 9:11 ऑप्शन में गिवन हो और पूछा मैन टू विमेन हो और एक नन ऑफ दीज ऑप्शन हो, तो नन ऑफ दीज आंसर हो जाएगा। तो हमेशा ये छोटी छोटी बातों को ध्यान रखना है, अदरवाइज क्वेश्चन गलत हो जाते हैं इन पे। और एग्जाम प्रेशर में ऐसी गलतियां बहुत कॉमनली होती हैं। Question number 3, what is the difference between total number of men and total number of women working in right shift from all the industries together? Question क्या पूछ रहा है? डिफरेंस पूछ रहा है, डिफरेंस पूछ रहा है। ठीक है, तो एक तरीका तो ये है कि हम टोटल नंबर ऑफ परसेंटेज ऑफ विमेन निकाल लें हर एक इंडस्ट्री में और फिर उसको ऐड कर लें और 100% में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमें मेन का ही वैल्यू पता चल जाएगा और उससे फिर हम डिफरेंस निकाल सकते हैं। Isn't it so? ठीक है, और वैल्यूज बहुत क्लोज हैं तो बहुत इजीली तो आइडिया नहीं लगेगा, प्रॉपरली कैलकुलेशन करने के बाद में ही समझ में आएगा। चलो स्टार्ट करते हैं। सो एज फार एज विमेन आर कंसर्न्ड, IT, स्पोर्ट्स, कॉल सेंटर, सेल्स, बैंकिंग एंड केमिकल इंडस्ट्री। IT में विमेन का परसेंटेज कितना है? 12% का 20%, 20% इज 1/5, 1/5, तो 12% इंटू 1/5 यानी कि 2.4% विल बी विमेन। स्पोर्ट्स में भी 20% ही है, 1/5 यानी कि 3.6%। दोनों को साथ में मिला के भी कर सकते थे क्योंकि दोनों में 20% है, तो 30% का 1/5 यानी 6% हो जाता। कॉल सेंटर में 45% है, 32% का 45%, 50% कितना होगा 32 का? देखो 45% इज 50% माइनस 5%, 50% इज 16, तो 16 माइनस 1.6 यानी कि 14.4%। सेल्स में 60% 3/5, 8 3 24/5 यानी कि 4.8%। बैंकिंग में 40%, 14 4 56, 5.6%।
केमिकल इंडस्ट्री में 15%, 10% होगा 1.6, 5% 0.5% होगा 0.8, सॉरी 0.5 नहीं 5% होगा 0.8, तो 1.6 प्लस 0.8 2.4% टोटल आ गया। ऐड कर देते हैं इनको, तो दिस इज 6, दिस इज 6, 6 प्लस 14.4 20.4, 20.4 प्लस 0.8 21.2 प्लस 4 25.2, 25.8 30.8 31.2 33.2% टोटल आ गया। अगेन यहाँ पे भी जब हम ऐड कर रहे थे तो पहले हमें डेसिमल के बाद वाली वैल्यू को सेपरेटली ऐड करना है और फिर डेसिमल के पहले वाली यानी इंटीग्रल वैल्यू को ऐड करना है। तो ऐसे और कोशिश करो, ठीक है, अगर लिख के करते हो बार बार लिख रहे हो तो चीज़ों को मेंटली करने की कोशिश करो, कैलकुलेशन तभी हमारा फास्ट होगा और जब प्रैक्टिस करोगे तभी होगा। तो लगातार बार ऐसी प्रैक्टिस करते रहना है हर एक क्वेश्चन में, ठीक है। 33.2% हमारा वुमेन का नंबर आ गया और हमें पता है टोटल इज 100%, तो बचा हुआ जो नंबर होगा वो कितना होगा, वो मेन के लिए होगा, तो मेन का नंबर आ जाएगा 100% माइनस 33.2, सो दैट विल बी 66.8%। हमें चाहिए क्या, डिफरेंस चाहिए इन दोनों का, डिफरेंस है 66.8 तो 33.2 का डिफरेंस विल बी 33.6%, 33.6%। ओके, ये हमको आंसर चाहिए, क्या वैल्यू होगा, सो दिस विल बी 336 डिवाइड बाई 100 इंटू 40250। एक जीरो से जीरो गया, बट ये जो डेसिमल हटाओगे तो यहाँ एक जीरो और ऐड हो जाएगा, एक जीरो और ऐड हो जाएगा, सो दिस विल बिकम 336 अपॉन 100 इंटू 4025। क्या करें अभी इसको, अगर हम 4 से कैंसिल आउट करें नीचे बचेगा 25, ऊपर बचेगा 4 से 84 और 25 से यहाँ बचेगा 161, ठीक है। जब 25 से डिवाइड कर रहे हैं तो ऐसे समझो कि जब भी 25 से डिवाइड कर रहे हो तो हमें यहाँ पे नंबर क्या गिवन है 4025, ठीक है। सो वी कैन राइट दिस एज 4000 प्लस 25, मेंटली समझना है इसको, लिखने की जरूरत नहीं है अलग से, ठीक है। सो जो पहला वाला 40 है इसको मल्टीप्लाई कर दोगे 4 से, क्योंकि 40 इंटू 100 है यानी 40 इंटू 25 इंटू 4 है, तो दिस विल बी 160 और यहाँ पे बचा 160 प्लस 1, क्लियर है, ठीक है। डिवाइड करने के लिए बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं करना है, सो दिस विल बी 84 इंटू 161। अब हमको पता है 84 यानी कि 4 का मल्टीपल है, तो आंसर भी 4 का मल्टीपल होना चाहिए, आंसर भी 4 का मल्टीपल होना चाहिए, इजंट इट सो। सी और डी तो 4 के मल्टीपल ही नहीं है, बी इज द ओनली आंसर जो कि 4 का मल्टीपल है, तो बी अपना आंसर हो जाएगा। इज दैट क्लियर, ये तो 2 का मल्टीपल है सिर्फ, क्या ये बात समझ में आती है, ठीक है। तो अपना आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इज इट क्लियर, ओके। अब देखो यहाँ पे और मल्टीपल क्वेश्चंस थे, बट ऐसा भी हो सकता था सिर्फ एक क्वेश्चन होता और हमें निकालना है डिफरेंस, तो हम डिफरेंस निकालने के लिए कोई और तरीका भी अप्लाई कर सकते थे, ठीक है। तो वो अभी अगले क्वेश्चन में हम लोग देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी स्पेस फिलअप हो चुका है और शायद आगे के किसी क्वेश्चन में हमें जरूरत पड़ेगा इन परसेंटेज का। तो अगले वाले पेज पे देखते हैं कि हम डिफरेंस निकालने के लिए और क्या तरीका इस्तेमाल कर सकते थे, ठीक है। देखो अब क्योंकि हमें यहाँ पे वैल्यूज गिवन है, फॉर एग्जाम्पल देखो आईटी में सिर्फ फोकस करते हैं पहले, फिर सबके लिए बात करेंगे। आईटी में टोटल इज 12% एंड वी नो दैट फीमेल्स या फिर वुमेन आर 20%, यानी कि मेन जो होंगे या मेल्स होंगे दैट विल बी 80%, 80% हो गए, यानी कि डिफरेंस तो 60% होगा ना, डिफरेंस विल बी 60% ऑफ 12%, इजंट इट सो। क्या ये बात ऑब्जर्व कर पा रहे हो, यानी कि 20% अगर विमेन है तो यानी कि 100% माइनस 40%, 60% डिफरेंस होगा, 20 80 60 का डिफरेंस होगा, तो 12% का 60% आईटी में डिफरेंस आएगा हमारा 12 इंटू 6 7.2% का, 7.2% का, इज दैट क्लियर। सिमिलरली स्पोर्ट्स में बात करें, अब यहाँ पे एक छोटी सी चीज़ है जो और ऑब्जर्व करनी है अगर आप ऐसे डिफरेंस कैलकुलेट कर रहे हो, कि जब भी हमारा यहाँ पे देखो आईटी में विमेन आर लेस, स्पोर्ट्स में विमेन आर लेस, कॉल सेंटर में विमेन आर लेस, बट सेल्स में विमेन आर हाई। सेल्स में हमें जब डिफरेंस लोगे तो यहाँ पे निगेटिव वैल्यू लेना पड़ेगा, क्योंकि सेल्स में विमेन ज़्यादा है मेन कम है। बाकी हर एक केस में जो डिफरेंस आ रहा है अगर हम इसको पॉजिटिव वैल्यू ले रहे हैं क्योंकि यहाँ पे मेल ज़्यादा है, ठीक है, तो ये जो डिफरेंस है यहाँ पे मेल ज़्यादा होंगे, बट बाकी सब में भी यही सेम कहानी है, मेल सब में ज़्यादा है सिवाय सेल्स के, तो सेल्स वाले को माइनस करेंगे। इस तरह से भी कैलकुलेशन करके देखते हैं, ठीक है, ठीक है। ये टाइम हमारा कम बचाएगा। तो 18 अगेन 20% है, यानी कि 60% डिफरेंस होगा, 18 इंटू 6 10.8% इन स्पोर्ट्स। कॉल सेंटर में तो 45% विमेन है, 55% मैन होंगे, 10% ही डिफरेंस होगा, तो यानी कि दिस विल बी प्लस 3.2%। सेल्स में 60% विमेन है, 40% मैन है, 20% डिफरेंस होगा, यानी कि 1.6 बट निगेटिव में होगा, बैंकिंग में 20% डिफरेंस होगा, 14 का 20%, यानी कि 2.8%। और लास्ट में केमिकल इंडस्ट्री में
16% का 15% वुमेन है, 85% मैन होंगे, 70% डिफरेंस होगा। 16% का 70% यानी 16 इंटू 7, दैट विल बी 112 डिवाइड बाई 10 होगा 11.2%। 11.2%। दिस इज 11 प्लस 3 14%, दिस इज 10 प्लस 8 18%, एंड दिस इज प्लस 1.6। तो डिफरेंस आ गया 18 प्लस 14 32 प्लस 1.6 33.6%। दिस इज अवर डिफरेंस। ये भी एक तरीका है डिफरेंस निकालने का। क्या ये बात समझ में आती है? अप्रिशिएट कर पा रहे हो? ठीक है, क्लियर है? अब इस क्वेश्चन को करते हैं, तो इस डेटा को रिमूव करते हैं यहाँ से। ओके, so now the question is, what is the approximate average number of females working in the right shift from all the industries together? Approximate average number of females निकालना है। टोटल नंबर ऑफ फीमेल्स कितना आया है? टोटल नंबर ऑफ फीमेल्स आया 33.2%, तो हमें चाहिए एवरेज। 33.2% इज टोटल। टोटल नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज है 1 2 3 6, डिवाइड बाई 6 करेंगे, एंड दिस मल्टीप्लाइड बाई 40250, तो दिस विल बी अप्रॉक्सीमेटली कितना आएगा? 5.533% इंटू 40250। ओके, 1% कितना है? 1% इज 402.5। 402.5 इज 1%, isn't it so? तो 5% कितना होगा? दैट बी 2013 के आसपास। 5% भी 2013 के आसपास, और हमें 5.5% के आसपास की वैल्यू चाहिए, यानी कि 2013 प्लस 200 समथिंग, तो 2200 के आसपास आंसर आएगा। क्लियरली ऑप्शन डी आंसर है, बाकी ऑप्शंस बहुत ज्यादा दूर दूर हैं। isn't it so? क्लियर है? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। What is the total number of men working in right shifts from all the industries together? Total number of men निकालना है। Women थी 33.2%, men are 66.8%, और वैल्यूज बहुत ज्यादा दूर तो नहीं है, थोड़ा बहुत डिफरेंस है, बट 66.8% हमें निकालना है। एंड वी नो कि 66.67% होता है 2/3, दैट इज 2/3। पास का परसेंटेज हमने देख लिया। अब इसके आसपास ही वैल्यू होगी। 40250 का 2/3 निकाल लेते हैं, कितना आएगा? इंटू 2/3, तो दिस विल बिकम 80500 डिवाइड बाई 3, 80,000। ये कितना आएगा? 3 से डिवाइड किया, सो ये आया 26 बचा 25, 26833, 26,833। ये है 66.67% बजाय, और एक्चुअल आंसर क्या है? दैट इज 66.8%, तो थोड़ा सा हाई होगा, इससे थोड़ा सा वैल्यू स्लाइटली हायर होगा। ठीक है, 1% इज 402, तो 0.1% होगा 40, 0.1% वैल्यू 40, 0.13% है, हमें और ऐड करना है इसमें। ठीक है, ये एग्जैक्ट के लिए बता रहा हूं, क्वेश्चन में आंसर तो दिख गया हमको, इसके बाद खत्म हो गया, ऑप्शन बी आंसर है क्लियरली, बट हमें और एग्जैक्ट पहुंचना होता 0.13%, तो वी नो कि 1% इज 402.5, 0.1% इज 40.25। ठीक है, और फिर इसका भी डिवाइड बाई 4 कर दोगे तो 0.25% में मिल जाएगा। 0.25% विल बी 10 हो जाएगा, और फिर हमें करना है 0.05 यानी कि 2, तो 40 प्लस 10 प्लस 2 यानी कि 52 ऐड कर दोगे, तो रफली 52 ऐड कर दोगे तो आंसर आ जाएगा 52 53। ठीक है, सो हम बिल्कुल 10 की रेंज में पहुंच गए। क्या ये बात अप्रिशिएट कर पा रहे हो? ठीक है, सो ये सेट भी हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट सेट पे चलते हैं। Next is a bar graph based set, grouped bar graph based set. The amount of production and sales by a company over the years in lakh units is shown below. Production की value is in deep black और sales is in dashed form. ठीक है, what is the difference of sales of 2003 and 2005 in 1000 units? अब यहाँ पे हमें वैल्यूज दी हैं लाख्स यूनिट में, और क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? 1000 यूनिट्स में, तो वेरी इंपॉर्टेंट। 2003 और 5 के बीच का डिफरेंस पूछ रहा है सेल्स का। 2003 इज दिस वैल्यू एंड 2005 का वैल्यू इज दिस वन। 2003 में दिस इज 9 lakhs और 2005 में दिस इज 10 lakhs, तो 1 लाख का डिफरेंस है, बट 1000 में दिस विल बी 100, ऑप्शन सी। ओके, अब इसको भी गलत करोगे, अगर ए मार्क कर दिया तो फिर क्या कहा जाए? क्वेश्चन नंबर 2, टोटल सेल्स ऑफ 2001 एंड 2002 टुगेदर आर अप्रॉक्सिमेटली व्हाट परसेंट ऑफ सेल्स इन 2004? टोटल सेल्स ऑफ 2001 एंड 2 इज 6 lakhs प्लस 10 lakhs यानी कि 16 lakhs, और 2004 का सेल्स है अपना 13 lakhs, अप्रॉक्सीमेटली 13 lakhs, थोड़ा सा कम वैल्यू आ रहा है वैसे तो 13 lakhs है, बट 13 lakhs मान लेते हैं। ठीक है, तो 16 lakhs पूछ रहा है अप्रॉक्सीमेटली व्हाट परसेंट। बेस वैल्यू 13 lakhs है, 13 lakhs से दिस इज 3 lakhs ज्यादा, यानी कि ऑलमोस्ट 20% ज्यादा है। ऑप्शन ये आंसर आ जाएगा, ऑप्शन ए विल बी द आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 3, इन विच ईयर द परसेंटेज ऑफ सेल्स टू प्रोडक्शन इज मैक्सिमम? परसेंटेज ऑफ सेल्स टू प्रोडक्शन इज मैक्सिमम।
ठीक है, तो परसेंटेज क्या है, रेशियो है, यानी कि सेल्स अपॉन प्रोडक्शन को मैक्सिमम करना है, मैक्सिमाइज करना है हमको। अगर मैक्सिमाइज करना है तो सेल्स शुड बी एज हाई एज पॉसिबल, प्रोडक्शन शुड बी एज लो एज पॉसिबल। सेल्स को मैक्सिमाइज करना है और प्रोडक्शन को लो करोगे तभी हमारा जो रेशियो है वो मैक्सिमम आएगा। क्लियर है? तो यानी कि सेल्स शुड बी एज हाई, प्रोडक्शन शुड बी एज लो। और सेल्स हमारा क्योंकि सेकंड वैल्यू है, तो सेकंड वैल्यू जो हमारी ग्राफ में है, इमेजिन करने की कोशिश करो कि वो जितनी ज्यादा से ज्यादा हाई हो। ठीक है, सबको कैलकुलेट नहीं करना है, कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। कैलकुलेट कर रहे हो तो फिर ग्राफ देने की जरूरत क्या थी? ठीक है, ग्राफ दिया है उसका इस्तेमाल करना है हमको। ठीक है, तो सेल्स जितना ज्यादा से ज्यादा वैल्यू है, यानी कि सेल्स और प्रोडक्शन में हम सारे केसेस में इफ यू ऑब्जर्व इन ऑल द केसेस सेल्स इज लेस देन प्रोडक्शन। इन ऑल द केसेस सेल्स इज लेस देन प्रोडक्शन, काइंड ऑफ क्वाइट ऑब्वियस एज वेल, बट फिर भी ऐसा हो सकता है ना कि पिछले साल का प्रोडक्शन अगले साल बिक रहा होता। तो सेल्स और प्रोडक्शन में सेल्स इज ऑलवेज लो, तो हमें वैल्यू चाहिए, मैक्सिमम भी होगा तो कितना होता है, 1 होगा, यानी कि सेल्स और प्रोडक्शन बराबर हो जाएंगे, वो तो किसी केस में है नहीं, बट 1 के जितना आसपास हो सके। तो सेल्स और प्रोडक्शन जहां पे क्लोजेस्ट होंगे दैट विल बी अवर टारगेट वैल्यू। तो एक तो हमारे क्लोजेस्ट दिख रहे हैं यहाँ पे 2001 में, और बाकी जगह पे तो दे आर फार, और फिर दिख रहे हैं 2006 में। अगेन हाई वैल्यूज पे एक बार जरूर फोकस करना है, बिकॉज ऐसा हो सकता है कोई हाई वैल्यू में डिस्टेंस ज्यादा दिख रहा हो लो वैल्यू से। ठीक है, क्योंकि एब्सोल्यूट डिफरेंस इज नॉट इंपॉर्टेंट, कि सिर्फ एब्सोल्यूट डिफरेंस को देखोगे नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है। साथ में हमको यह भी देखना है कि एक्चुअल में वैल्यूज कितनी है। ठीक है, वैल्यू है कितनी, क्योंकि कंपेयर करोगे तो रेशियो में दैट विल मैटर। अब यहाँ पे हमारा 2006 के लिए क्या आ रहा है रेशियो, सेल्स अपॉन प्रोडक्शन, दैट इज 16/18 विच इज 8/9, और फॉर दिस वैल्यू दिस इज 6/7, 6/7। ठीक है, 6/7 इज द वैल्यू। क्लियर है? तो हमारा क्लियर आंसर होगा 2006 में परसेंटेज ज्यादा आएगा 8/9, यानी कि दिस इज 88.88%, 88.88%, और दिस इज 100 माइनस 14.28, यानी कि 85.72% के आसपास की वैल्यू आ रही है। ऑप्शन 2006, ऑप्शन सी विल बी द आंसर। अगर बाकी ईयर्स के लिए कैलकुलेट करें जरूरत नहीं है, बट फिर भी अगर करें तो सो दिस विल बी 10/13, 10/13। दिस वैल्यू इज 9/12, 75%, और दिस वैल्यू इज 13/16। ठीक है, 13/16 यानी कि 82% के आसपास की वैल्यू है। दिस इज, ये तो बहुत ही कम है, कोई सेंस ही नहीं बनता इसको देखने का। ऑप्शन सी इज द आंसर। क्वेश्चन 4, व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट परसेंटेज इंक्रीज इन प्रोडक्शन फ्रॉम 2003 टू 2004? प्रोडक्शन में कितना इंक्रीज आया है? 12 से दिस वैल्यू हैज बिकम 16, 4 का इंक्रीज आया, बेस वैल्यू है 12, बेस वैल्यू है 12, तो 12 में 4 का इंक्रीज है, यानी कि 33.33%। ऑप्शन बी इज द आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज द परसेंटेज ड्रॉप इन सेल्स फ्रॉम 2002 टू 2003? 2002 में सेल्स है 10 और 2003 में हो गई 9, 10 से 9 यानी कि 10% का ड्रॉप है। ऑप्शन सी। तो वेरी इजी सेट, अगेन बहुत ही आसान सेट था और क्वेश्चंस वर वेरी डूएबल। नेक्स्ट सेट पे चलते हैं। तो नेक्स्ट इज अगेन अ ग्रुप बार ग्राफ, बट दैट इज अ हॉरिजॉन्टल बार ग्राफ। The bar graph represents the value of exports and imports in rupees crores of a country in the given period. Exports are in deep black or imports are dashed. Question number 1 is, in which year the difference between export and import are closest to rupees 100 crores? These values are given in rupees crores. ठीक है, so 100 crores कितना आ रहा है डिफरेंस? This is 300 crores, this is 400 crores, तो 100 crores is equal to this much value. इतना होना चाहिए डिफरेंस, है कि नहीं? यूज करते हैं ग्राफ का, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन का। सो क्लियरली 2017 में तो नहीं है इतना डिफरेंस, 2016 में यस दैट मच इज द डिफरेंस, और किसी ईयर में नहीं है। यहाँ पे भी 2 से ज़्यादा यानी 100 से ज़्यादा वैल्यू है, 100 से लेस है। क्लियरली ऑप्शन ए 2016 इज द आंसर। क्लियर है? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट्स इन 2016 वाज व्हाट परसेंटेज ऑफ द एवरेज वैल्यू ऑफ इंपोर्ट्स इन 2014, 15 एंड 17? एक्सपोर्ट्स इन 2016, एक्सपोर्ट इन 2016 कितना है? दैट इज 450, और इंपोर्ट वैल्यूज का एवरेज लेना है 2014, 15 एंड 17। तो इफ यू ऑब्जर्व 2014, 15, 2014 में दिस वैल्यू है, 15 में ये है, और 17 में ये है, तो ऑलमोस्ट जो हमारा एवरेज है वो यही वैल्यू तो है, 250 इज द एवरेज वैल्यू। अब चाहो तो ऐड करके देख लो, बट जरूरत नहीं है कि जब हमारा देख रहे हैं एक वैल्यू 250 से थोड़ा कम है, एक वैल्यू थोड़ी सी ज़्यादा है, तो डेफिनेटली एवरेज हमारा बीच में ही है, 250 है। क्लियरली 250 इज द एवरेज वैल्यू, और 450 इससे 200 ज़्यादा है, यानी कि 80% ज़्यादा है, 180% हो जाएगा। व्हाट परसेंट ऑफ द, अगर व्हाट परसेंट मोर पूछता तो 80% होता, व्हाट परसेंट ऑफ पूछा है तो 180%। ऑप्शन बी इज द आंसर।
ठीक है, अगर ऐड करना चाहोगे तो ऐड करके भी देख लोगे, पर जरूरत नहीं है, सीधे सीधे एवरेज जब दिख रहा है क्लियरली हमको तो ऐड करने की यहाँ पे कोई भी जरूरत नहीं है। डिफरेंस ज़्यादा होता तो फिर हम ऐड करके एवरेज निकालते प्रॉपरली। इज दैट क्लियर? क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ एक्सपोर्ट वैल्यू ऑफ द वैल्यू ऑफ इंपोर्ट इन द ईयर 2014 में? एक्सपोर्ट इंपोर्ट का कितना परसेंट है इन द 2014? तो एक्सपोर्ट इज 375, इंपोर्ट इज 250, तो एक्सपोर्ट अपॉन इंपोर्ट इज 375 अपॉन 250, दैट इज 3/2, so that is 150%. 150% ऑप्शन सी। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द अप्रॉक्सीमेट डिफरेंस बिटवीन एवरेज एक्सपोर्ट एंड एवरेज इंपोर्ट ड्यूरिंग द गिवन ईयर्स? ड्यूरिंग गिवन ईयर्स में एवरेज एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का डिफरेंस क्या होगा? अगेन इफ यू ऑब्जर्व कि सारे केसेस में हमारा क्या है, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट में एक्सपोर्ट हमेशा हाई है, इंपोर्ट हमेशा लो है, तो या तो सारे एक्सपोर्ट को ऐड करें फिर उनका एवरेज निकालें, सारे इंपोर्ट को ऐड करें उनका एवरेज निकालें और फिर डिफरेंस निकालें। बेटर क्या होगा कि हम डायरेक्टली डिफरेंस ही को ऐड करके एवरेज निकाल लेते हैं, बट ध्यान क्या रखना है कि सारे केस में एक्सपोर्ट हाई है, अदरवाइज प्लस माइनस वाला केस बनेगा, जैसे हमने वुमेन वाले में देखा था कि अगर कहीं पे उल्टा होता तो आप माइनस करते। ये छोटी सी चीज़ को जरूर ध्यान रखना है, ठीक है। और हमेशा कैलकुलेशन को क्योंकि कम से कम रखना है हमको, आलसी लोग हैं हम, ठीक है, ज़्यादा कैलकुलेशन करनी नहीं है, मेहनत करनी नहीं है, टाइम वेस्ट क्यों करेंगे अपना। तो अब यहाँ पे डिफरेंस आ रहा है अपना कितना, यहाँ पे डिफरेंस आ रहा है इक्वल टू 50, ठीक है, 50 का डिफरेंस आ रहा है, यहाँ पे डिफरेंस आ रहा है 100 का, यहाँ डिफरेंस है 75 का, दिस इज 125, दिस इज अगेन 75 एंड दिस इज अगेन 75, ठीक है, क्लियर है। तो दिस वैल्यू इज 75 प्लस 75 150 प्लस 200 350 450 500, तो दिस इज टोटल 500, नंबर ऑफ ईयर्स हैं 6, 500 बाई 6 करेंगे 83.33 crores विल बी द आंसर, ऑप्शन बी क्लोजेस्ट वैल्यू है ऑप्शन बी। इज दैट क्लियर? ठीक है, ओके। Next question, what is the percentage increase in the value of exports in 2016 over 2015? 2015 में एक्सपोर्ट है हमारा 300 और 2016 में है 450, 150 का इंक्रीज आया है, बेस वैल्यू 300, तो 50% का इंक्रीज, ऑप्शन डी इज द आंसर। खत्म, टाटा बाय बाय, ओके। तो दीज आर ऑल द सेट्स, आई बिलीव ये लास्ट सेट होगा, हाँ। तो दीज आर ऑल द सेट्स ऑफ डेटा इंटरप्रिटेशन फ्रॉम द ईयर 2023। आई बिलीव कि सेशन आपको समझ में आओगे, क्वेश्चन समझ में आओगे कि किस लेवल के आ रहे हैं। 2022 के जो डीआई के सेट्स हैं वो भी हम डिस्कस कर लेंगे नेक्स्ट सेशन में। और अगर सेशन पसंद आए तो उसको लाइक जरूर करना है। अगर कोई भी क्वेरी है, कोई भी क्वेश्चन है, तो यू कैन ऑलवेज कमेंट ऑन दैट, ठीक है। एंड यू कैन ज्वाइन द टेलीग्राम ग्रुप दैट इज CAT-ZAT-MBA। आई विल अपलोड द क्वेश्चंस PDF there as well, ठीक है। You can also connect with me on Telegram at ADITYAKT for any further queries. That's all for this session. Bye bye. Take care.